Okay, anyways, so we'll start with the today's session. In the previous class, we were discussing about Fourier series. So, we have seen over there, like what do you mean by a Fourier series? And then we have seen like there are three types of Fourier series. Like we have a quadrature or a trigonometric Fourier series. Then you have a complex Fourier series, and we have a polar-based Fourier series. Like we have seen such kind of things over there. Like if I talk about, if I come here, like we have seen what you mean by Fourier series, then we understood like what is the difference between a Laplace transform, a Fourier transform, a Z transform. Then also we have seen a relationship between the Laplace transform and Fourier transform, and also we have seen that what do you mean by harmonics, and then we talked about Dirichlet condition, and last we have seen about what do you mean by a trigonometric or a quadrature Fourier series, then what do you mean by a complex and exponential Fourier series, and last is a polar or harmonic Fourier series. And in the previous lecture, like the lecture was conducted on 12th of March, that is Friday. On 12th of March lecture, Friday's lecture, we have seen that uh, how to solve an example based on that, like what is a trigonometric quadrature, and we have seen some certain illustrations, and we have solved certain gate-based questions. For example, like I have this kind of waveform, then what will be A0, Bn, and then what will be A0, An, Bn in this case, what will be A0, An, Bn in this kind of example. And then our lecture proceed towards the solving of Mumbai University-based exam questions. Like, for example, I have this kind of question. So then how to get the quadrature Fourier series, like how to solve and how to get the value of Fourier coefficients like A0, An, Bn. So we have seen is the formula for A0, then what is the formula for An, is the formula for Bn, and then we solve an example based on that, right? Then talking about exponential Fourier series, like how to solve this kind of question. This previous question, ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन का आप वेवफॉर्म देखिए, फिर ये वाले क्वेश्चन का वेवफॉर्म देखिए, तब दोनों डिट्टो सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ क्वेश्चंस आर फ्रॉम बिलोंगिंग टू सेम वेवफॉर्म. बट फर्क इतना है, difference is this question demands quadrature Fourier series. Fine, this question demands quadrature Fourier series, and wherein this question deals about exponential Fourier series. So for quadrature Fourier series, it goes like A0 plus summation n equal to 1 up to infinitive an cos n omega naught t plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n omega naught t. यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन भी आता है. वाइवा क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे आपने कहा A0, यहाँ पे आप कहते हो n equal to 1, तो obviously will be having A1, A2, A3, A4 and so on. Then why the difference? Like why you don't have B0? करेक्ट ना, जैसे यहाँ पे A0 है तो B0 क्यों नहीं है? जैसे यहाँ पे आपने कहा कि A0 का वैल्यू मुझे कंप्यूट करने के बाद में आता है A tau by T0, ठीक है, आपने यहाँ पे An भी कंप्यूट कर दिया, फिर आपने कहा कि Bn is 0, फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट सम क्वेश्चंस में आप लोग को मिलेगा A0 मिलेगा, A1, A2, B1, B2 से स्टार्ट होता है, B0 से क्यों नहीं होता है? कैन एनीबॉडी गिव आंसर टू दिस, लाइक व्हाई डोंट वी हैव B0 इन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल? तो साइन जीरो होता है ना. साइन जीरो जीरो होता है ना. Exactly, साइन जीरो जीरो हो जाएगा ना exactly, वन टाइम. exactly. Because the moment you put n equal to 0 in this case, the moment you put n equal to 0 in this case, you have cos 0 equal to 1. So obviously A0 will prevail. But the moment you put n equal to 0 in this case, so you say sine 0 will be 0. So obviously B0 into 0 will be 0. So you don't have B0 sustaining in that case. That is the reason our count starts from 1 in the case of B. And in case of A, the count starts from 0, like A0, A1 and so on. Fine. Anyways, proceeding forward then. And then we have seen like for An, we have cos term to be integrated, evolved in this case. And when we computing the integral for Bn, at that time, supposed to have sine involved in that. One more thing to understand, when I was computing the integral of A0 over there, I need to put like 1 upon T0, very, very important. And when I'm computing An and Bn, at that time, what is the integration? It is 2 upon T0, 2 upon T0. ये भी चीज मुझे ध्यान में रखना चाहिए कि that आप जब A0 compute करते हो, तो it is simply 1 upon T0, 1 upon T0 for A0. And when it is An and Bn, at that time it is 2 upon T0. That is again a difference you need to understand. याद रखिए सर, यहाँ पे 1 upon T0 है और यहाँ पे मुझे करना है 2 upon T0. कोई बुक्स क्या बोलता है
कि सर यहाँ पे आपने 2/20 लिखा, 2/T0 लिखा, तो यहाँ पे क्यों? ठीक है, काम करते हैं। अगर इफ आई वांट 2/20 हियर एज वेल, तो वो क्या बोलते हैं, काम करिए, आप 2 इधर लिखिए, सो दैट यहाँ पे भी आपको 2/20 मिले, और फिर इसको कंपनसेट करने के लिए व्हाई डोंट यू पुट हियर 2? सेम थिंग हुआ ना? Is it not the same thing? Because when I try to solve and put this integration का value over here, so don't you think these two and these two will cancel with each other? So eventually I'll be left with 1/T0 itself. तब ये आपके हाथ में lie करता है ना, the decision is completely in your hand whether you want 1/T0 or you want 2/T0, like the way we had in this case. जैसे यहाँ पे मुझे था 2/T0 आपको वैसे रखना है, या फिर आपको 1/T0 चाहिए। अगर आपको 2/T0 चाहिए, like the way we had in AN and BN, so don't forget to put your A0/2. So your master equation, the master expansion of Fourier series will be like A/20 plus summation of AN cos plus summation BN sin. It will be like that way. I hope the things are clear to you, like when and why I'm supposed to put 1/T0 and when I'm supposed to put 2/T0. Anyways, now proceeding towards exponential Fourier series. So in case of exponential Fourier series, the same thing is there. The expansion series is given by summation of minus infinitive to plus infinitive Cn e raised to e raised to plus, यहाँ पे प्लस साइन है याद रखिए, प्लस j2 pi n t/T0. It is e raised to plus j2 pi n t/T0. And what is Cn? Cn is a Fourier coefficient, like the way you had A0, A1, An, Bn, like Fourier coefficient in case of trigonometric. But in case of exponential, you have only one Fourier coefficient as Cn, and Cn is given by 1/T0. देखिए यहाँ पर 1/T0 आ रहा है, 1/T0 इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम t to t plus t0, मतलब पूरा इंटीग्रल मुझे लेना है ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड t0, गिवन बाय x ऑफ t इनटू e रेज टू माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है सर, यहाँ पे प्लस हुआ करता था, इट वाज देयर वाज प्लस, बट यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे माइनस को लेता, आई हैव हियर माइनस ऑफ j2 pi nt/T0 dt. Fine. Now let us consider that our cycle is going from minus of T0/2 till plus T0/2. Now you can very much understand that from minus T0/2 till minus tau/2, the value is 0. Similarly, from plus tau/2 till T0/2, again the value is 0. So you have only value existing between minus tau/2 till plus tau/2. So now our integration will be from minus tau/2 till plus tau/2. And what is the value of x of t in that particular interval? The value is a. So I put the value here as a. Fine. And obviously we know very well it is e raised to minus of j2 pi nt/T0. But integration is with reference to time. So here जो कुछ भी बच जाता है, क्या क्या बचने वाला है, minus j2 pi n/T0 will be like coefficient, or just like coefficient, just like the multiplication factor, so that everything will come where, in the denominator part. Fine. So you have here, because we know very well integration of ax is what, integration of e raised to ax divided by a, that a is the coefficient that will go in the denominator. So I have here what, j2 pi n/T0 with minus sign obviously, and this T0 as it is, which comes over here, and then after evaluation what I get, so I'll be getting rid of this, तो ये T0 cancel हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो था, ये पूरा टर्म आपका नीचे की तरफ आ गया, you get this पूरा term over here. Fine. And after getting this term, and then you cancel this T0 with this T0, ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, माइनस साइन इधर आ गया, ये T0 आपने कैंसिल कर दिया. So now what you are left with, you are left with what, a upon j2 pi n, and then you will be substituting these limits. So you substitute t as tau/2 minus of, again the same thing with the substitution as minus of tau/2. So you have your upper limit substitution as minus tau/2, and then again you have lower limit substitution as minus of minus tau/2. So you have your plus tau/2. And we know, as per the Euler's representation, that sine theta, what is sine theta? It is e raised to, what is sine theta? It is e raised to j theta minus of e raised to minus of j theta upon 2j. Fine. So like I need to adjust
the values in such a way that this comes out, this will be minus sign, यहाँ पे minus आना चाहिए, ठीक है, ये minus था, ये इधर आ गया, because when I bring this minus sign inside, so I'll be left with what? E raised to j pi n tau upon t0, minus of e raised to minus of j pi n t upon t0. Fine. So what will be the solution for this? And we know, क्या पता है हम लोगों को, that we have sin theta is what given by e raised to j theta minus of e raised to minus of j theta upon 2j. Correct? Sir, how do I got this? ये कैसे आया मुझे? तो मुझे बता सकता है? Euler's representation. Exactly. E raised to j theta is what? It is cos theta plus j sin theta. किसी को अगर नहीं पता है तो इसको देखिए सर कैसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे. And similarly, I can write e raised to minus of j theta is equal to cos theta. यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था करके यहाँ पर भी प्लस आ गया, और यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैंने बीच में भी माइनस लिखा, माइनस ऑफ जे साइन थीटा. अब ये दो इक्वेशन जब को जो मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फाइन. So you have to add, you have to subtract them. So when you subtract 1 minus 2, so you will be left with this kind of solution. Because sin sin यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये add हो जाएगा, कि you will be left with subtract करोगे आप तो ये minus हो जाएगा, ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा. So you'll be having like 2j, and that is the reason you're getting in the denominator 2j. जिनको नहीं पता है, you can make a note of this in your book, in the side of your notebook, like how I got this. And similarly, अगर मैं इसको add करता हूँ, अगर मैं इसको add करता हूँ किसको, 1 and 2 को, so I'll be getting answer for cos. If I add 1 and 2, I'll get the answer for cos. And if I subtract 1 and 2, at that time I'll get the solution for sine. So now this is representing sine. That is the reason what I wrote there, a upon pi n sine of pi n tau upon t0. j को छोड़कर जो भी बच गया, j को छोड़कर, वही ना, j is what, j theta. So what is theta? Theta is this. ये जो बच गया है ये वाला पूरा टर्म, दिस पूरा टर्म विल कम कमिंग वेयर, दिस विल कम एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ योर साइन. ये पूरा टर्म आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है. एंड जस्ट क्लियरिंग द स्क्रीन, किसी को स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट ले सकता है. एनीबॉडी वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन. ओके फाइन. नाउ अगेन, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, व्हाट इज साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स इज सिंक एक्स. साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स इज सिंक एक्स. तो पाई ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर पाई ऑलरेडी है, तो खाली आपको क्या एक्स्ट्रा टर्म लगेगा, आपको n tau upon t0. तो यहाँ पे n ऑलरेडी है, tau upon t0 एक्स्ट्रा यू वांट, तो जस्ट पुट हियर tau upon t0, tau upon 20. फाइन. तो दिस बिकम्स योर सिंक फंक्शन. So now you have cn is equal to a tau upon t0 sinc of n tau upon t0. सिंक फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था. कहां देखा था? When we studied experiment number 1, representation of a signal. So over there I told you what is sine, what is sinc function. Fine. Okay. नहीं देखा है कोई बात नहीं, don't worry, I'll tell you what is sinc function. Now you have to put this value of cn which you obtained in equation number 4, where in the original expansion series. तो ये जो cn था वो cn के जगह पर ये 1 के अंदर I'm going to substitute the value of 4. So what will be the answer, sir? I have a tau upon t0 sinc of n tau upon t0 multiplied by e raised to प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे cn में माइनस है, प्लस j2 pi nt upon t0. Okay, so I get what this, so I get here it is e raised to plus j2 pi n upon t0. Now I need to find the spectrum of this signal. What is the meaning of spectrum? स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? इट इज एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज. तो मुझे एम्पलीट्यूड भी निकालना है और मुझे इसका फेज भी निकालना है. तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ cn in the equation 4, it is clear that the cn does not have an imaginary term. यहाँ पे imaginary term पूरी तरीके से absent है. So what do I have? I have only what? The real value. सर ये क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या है इसका? I'll explain you, don't worry sir. For example, suppose I tell you I have 2 plus j3. This is a complex number where 2 is a real term and j3, 3 is an imaginary. So now you tell me, for example, this is a. This is a. So what is the magnitude of a? तो आप बोलेगे सिंपल है सर, पाइथागोरस थ्योरम, 2 square plus 3 square. Yes or no? Fine.
फिर आपके मुझे इसका आंसर बोलोगे 3 3 9, 9 plus 4 is 13 and root 13 will give the answer. And if I ask you what will be the angle of A, well sir, angle is very simple. Again you go with tan inverse. You have tan inverse of imaginary, so imaginary is 3, real part is 2, so you have tan inverse of 3/2 which will give the answer to you, है ना. tan inverse of 3/2 अगर मैं करता तो मुझे इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा, that will be the answer of tan inverse of 3/2. But here in this case it is a special case. Why? Because in this case there is no imaginary term, means this term is as good as 0, means this term is as good as 0. So don't you think the root of 2 square will be as it is root of 2? Fine. ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, so will be left with only 2. means जो आपका रियल टर्म है वही आपका a बनेगा. लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान रखिए, जब आप कोई चीज का स्क्वायर निकालते हो और उसका रूट निकालते हो, तो इसके क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सपोज इफ x इज पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर x आपका नेगेटिव है तभी भी आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा. मतलब कहने का ये है, अगर मैं कहता हूं -2, क्या इसका आंसर आएगा? तो आप बोलेंगे -2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4. व्हाट इज रूट ऑफ 4? 2. इट इज गिविंग यू द एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज गिविंग यू द मॉड वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट. मतलब आपने क्या किया है, आपने माइनस साइन को पूरी तरीके से इग्नोर किया है. ओके, तो माइनस साइन इग्नोर करने पे आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा आपको. तो -3 इज 3, -4 इज 4 एंड +4 इज 4 इटसेल्फ. फाइन. तो अगर प्लस है तो प्लस मिलेगा, माइनस है तो भी प्लस ही मिलेगा. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आई एम जस्ट इरेजिंग द बोर्ड. अगर किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो. फाइन. आई एम जस्ट इरेजिंग द स्क्रीन. सो आई हैव हियर व्हाट I have here. So this can be given as, so Cn mod is given as Cn, same thing, A tau upon T0, sinc of n tau upon T0. Fine. So this is what I'm going to get. So now this is the original amplitude spectrum of sinc function. Sinc क्या बोलता है? Sinc क्या बोलता है कि this is the waveform. Now since you guys you're taking what? You're taking here the mod sign. Why mod? Because amplitude spectrum ले रहे हो, और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम का जो स्पेशल केस ये आ गया कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया. सो नाउ डोंट यू थिंक कि जो पोर्शन आपका नेगेटिव में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो दिस इज नेगेटिव पोर्शन, है ना. यहाँ पे आपको टोपी मिला, यू आर गेटिंग अ टोपी ओवर हियर, अ पॉजिटिव पीक हियर, एंड हियर यू गेटिंग नेगेटिव पीक. तो आपको नेगेटिव पीक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है. तो ये सब नेगेटिव पीक को मुझे ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा. तो ऑल दिस नेगेटिव पीक विल गो अप, विल गो will invert with that case. So here this will be my original waveform. तो मतलब इसको पूरा मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा. I'll show you what I'm trying to focus to you. ये शायद मैंने आप लोग के साथ में शेयर भी किया था. Just give me a moment. Evaluating Fourier transform with MATLAB. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. बोले देखिए ये केस होता है, but Fourier transform is purely real function. Fine. So I will be using this function in MATLAB absolute. तो जो पोर्शन नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर वेव फॉर्म. समझा कैसे आया ये? Why it is going up? Is it clear to you or not? Yes, students, is it clear to you or not? Have you understood what I'm trying to say? Sir, Yes, sir. सर इसका सिग्निफिकेंस कैसे होगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने का? Yes, sir. जो हमने छोड़ा वो छोड़ के. हाँ, सिग्निफिकेंस है बेटा. I'll come to significance. Don't worry. I'll show you. हम लोग थोड़ा मुझे टाइम दो, 5-10 मिनट, मैं आपको डिस्कस करता हूँ साथ में. अब तक आपको, हाँ, have you understood till here or not? Yes, Chris. सर तो प्रैक्टिकली मतलब जो पहला दिखा है वैसे आएगा. हाँ, सी ये Cn था, है ना. सी मैंने यहाँ पे आपको मैंने आपको क्या कहा इधर कि हियर सिंस इमेजिनरी पार्ट इज 0, सिंस इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना बेटा, चले कि यू हैव सिंस इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो इट इज 2 + j3, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे लिखोगे आप.
that you call it as the magnitude of A. This is the magnitude of A, MAG, magnitude of A. But here special case क्या बन गया है? Special case ये है कि this term is 0. So this term is 0. So you'll be having only answer as root of 2 square, which gives you what? 2 itself. तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये होता है कि अगर 2 था तो आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन अगर -2 है तभी भी आपको 2 ही मिलेगा, बिकॉज -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा. अंडर रूट ऑफ 4 इज 2. So don't you think this gives you absolute value? ABS, it is absolute. It is giving you basically absolute value of that A. तो आपका जो A था यहाँ पे, ये A का हम लोगों को एक्चुअल में absolute मिल रहा है यहाँ पे. So what I'm trying to focus guys here, that since it is involving only real part, imaginary part is 0. So after taking the absolute, the modulus sign, so if I have anything which is below the x-axis, I mean to say it is going in the negative portion. This is negative peak, this is negative peak, this is negative peak, this is negative peak. This all will get invert. तो ये हर जो कुछ भी चीजें थी वो इन्वर्ट होके ऐसे आपको नजर आएगा. लाइक हाँ, yes sir, got it. Fine. Okay. Can you please summarize it again? Yeah. Okay. Okay. ये देखो बेटा, सबसे पहले ये फूरियर सीरीज हम लोगों ने यहाँ पे तक निकाला. I got the value of Cn. First of all, this is the value of Cn which I have computed. After computation of value of Cn, then I substitute this value of Cn completely in the expression number 1, right? So after substituting the value of Cn in expression number 1, obviously this will prevail. What is that? E raised to j2 pi n upon t0. तो यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है. अब मुझे स्पेक्ट्रम निकालना है. तो स्पेक्ट्रम में मुझे ये पता चलता है कि इसके अंदर जो है इन द वैल्यू ऑफ द Cn इन इक्वेशन नंबर 4, यू ओनली हैव द रियल पार्ट. यहाँ पे आपको कुछ प्लस j ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? यू डोंट हैव एन इमेजिनरी टर्म इन्वॉल्व्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट Cn बेटा. From the equation on the value of Cn in equation number 4, it is clear, it is very much evident that Cn does not incorporate, Cn does not have any imaginary part. Therefore, the amplitude spectrum will be the modulus sign. जो हमने just हम लोगों ने देखा, because when you say under root of 2 square plus 3 square. सर सिंक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है और हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं इसको. यहाँ पे कन्वर्ट किया ना मैंने. यहाँ पे साइन था, साइन ऑफ पाई एन टाउ अपॉन t0 अपॉन पाई एन. तो सिंक इज गिवन बाय पाई एक्स अपॉन पाई एक्स. साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स इज सिंक एक्स. अच्छा सर, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं. साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स ऐसा कभी भी होता है ना, इसको हम कहते हैं सिंक ऑफ एक्स. ओके, now you come here. Here if you check, what do I have? I have sine is there, pi is there, n tau upon t0. n tau upon t0 यहाँ पर है. डिनोमिनेटर में पाई है और n है. किसकी कमी है? t upon t0 की कमी है. The moment I substitute tau upon t0 here and here, like multiplying and dividing by tau upon t0. So don't you think now I have sine of pi n tau upon t0 divided by, again same, pi n tau upon t0. So don't you think this gets satisfied? ये वाला equation satisfy हो जाता है. I can simply write sinc of x. So now I can put there what sinc of x. So what is x now? X is only what? N tau upon t0. Don't consider pi. Sin pi x upon pi x में केवल sinc x आता है, pi नहीं. यहाँ पे you don't have pi here. यहाँ पे there is no pi. Fine. Only what do you have is sinc of x. तो ये पूरा x यहाँ पे आ जाएगा आपको. So what is x? N tau upon t0. So you have a tau upon t0 multiplied by sinc of n tau upon t0. Is it clear to you, Ritik? Yes sir. Okay, fine. Now you're considering what? Now you consider the only Cn. So Cn is only involving real term. Imaginary term is 0. So when imaginary term is 0, so obviously if you take the magnitude, so magnitude operation of a complex number wherein only real term are taken into consideration is as good as taking the modulus
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट। और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है अगर मैं एब्सोल्यूट फंक्शन को प्लस वैल्यू देता हूं, लाइक +5, आंसर विल बी +5 itself. बट इफ आई गिव -7, the answer will be 7, but the माइनस साइन इग्नोर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, द रीजन इज कि यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज जो था, जैसे यहाँ पे आपको ये नेगेटिव आया, लाइक दिस नेगेटिव पीक, ये वाटी जो मिल रहा है, ये वाटी ऑटोमेटिकली टोपी बनना शुरू हो जाएगा। वाटी ऑटोमेटिकली टोपी बनना शुरू हो जाता है, और जिस वजह से आपको वेवफॉर्म ऐसे कुछ दिखेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, in a case there was an imaginary term, we'll have to use our formula of root of a plus a square plus b square, right? Exactly. When there is no Okay. imaginary term, that means that you are supposed to take the modulus of that function. And why we have seen already. Under root of a square plus b square, that is the formula for magnitude. लेकिन b तो है ही नहीं ना, जब b है ही नहीं तो क्या होगा? Under root of a square. And what is a? A is the real value. तो a का स्क्वायर फिर उसका रूट, मतलब आपने क्या किया, जो था आपको वही मिल रहा है, लेकिन जो माइनस साइन था वो इग्नोर हो जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट केस। नाउ यू टेल मी, अभी आप इसको देखिए, अगेन यू कम ओवर हियर। इन दिस केस इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, जो मैंने कल व्हेन आई वाज टेकिंग अ प्रैक्टिकल्स, एट दैट टाइम आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। एक चीज मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई टेल यू व्हाट इज साइन एक्स, तो बोले सर क्या यार कुछ भी पूछते हो आप, इतना लल्लू क्वेश्चन पूछा। बोले हाँ तो बताइए ना लल्लू है तो। बोले देखिए सर साइन एक्स जो है ना वैसे आने वाला है। बोले अरे यार बहुत सही बात। अब मुझे तो ये बता कि समझो अगर मैं कहता हूं आपको साइन ऑफ -x, फाइन, सो व्हाट विल बी द आंसर? sorry I don't mean that. I mean if you take like sine of x plus 180 और x minus 180, both is same. प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, 180 डिग्री कहा तो मतलब मैंने इसकी बात किया, दिस 180 डिग्री फॉर मी, करेक्ट ना? दिस इज 0, दिस 180, दिस इज 360। अगर ऐसा भी नहीं समझता है तो कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए चेंज कर देता हूं, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, एंड देन यू कंसीडर दिस टू बी एज पाई। So now you tell me what will be the answer if I say x plus pi or x minus pi. प्लस का मतलब क्या होता है? एडवांस, वी नो वेरी वेल। माइनस का मतलब होता है डिले। तो आप इधर पूरे सिग्नल को लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे, एडवांस मतलब, और डिले अगर रहा तो आप सिग्नल को जो है वो राइट की तरफ लेके जाओगे। सो व्हाट विल बी द वेव फॉर्म इन दिस केस? यस बताइए कैसे बनेगा वेव फॉर्म? हेलो सर प्लस 180 के अंदर वो लाइक विल शिफ्ट द वेवफॉर्म 180 टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड Yes. देन दैट 180 जो आपने वहां पे मार्क किया दैट विल कम एट द 0. मतलब डोंट यू थिंक द वेव फॉर्म विल बी लाइक दिस? यस सर. Okay, very good. So you are talking about this is for plus 180, x plus 180 degree. What about second case? सर दिखने में तो सेम होगा बट वो डिले अलग दिया पर दिखने में सेम. वेरी गुड वेरी गुड, यही मुझे आंसर चाहिए था कि सब दिखने में तो सेम होगा, बस खाली फर्क इतना होगा कि ये जो है अभी वो यहां से शुरू होगा, ये यहां से, दिस विल बी द वेव फॉर्म राइट, एंड ये जो था दिस आई हैव टू एस्टिमेट एंड दिस विल बी माय वेव फॉर्म, करेक्ट ना? बिकॉज दिस इज माइनस, तो मेरा एक्चुअल वेव फॉर्म जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, बट सिंस दिस इज द पॉइंट ऑफ intuition, this is the point of starting point, in the point of invoking, so this is the point where my sine wave will start, but since sine wave is continuous in nature, so I can very much presume कि in this portion this has to be waveform. मतलब कहने का रीजन ये है कि यहाँ पे भी आपको पहले वाटी मिलेगा फिर टोपी आएगा, पहले वाटी आएगा फिर टोपी आएगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं साइन ऑफ x प्लस 0 सर, तो वो टाइम पे पहले टोपी आता है बाद में वाटी आता है, मतलब यहाँ पे 0, so you have टोपी first and then the वाटी, and when I talk about 180 degree plus or minus I don't care about it,
At that time you have first Vati and then the topi. Correct? शिक्षक ने बोला सर क्यों इतना कंफ्यूज करते हो, तो क्या तरीका है? बोले सर सिंपल ना, साइन ऑफ एक्स इज दिस and this is basically minus of sine of x. Correct or not? Correct na, because yahan pe sine x will be what? Sine 0 will be 0, sine 90 will be 1. So when sine 90 1 hoga, wo time pe aapko pe -1 milega. So when sine 90 is 1 in this case, at that time sine 90 in this case minus hone ke wajah se aapko ye milega. So can I say this is the inversion of this? So this is the inversion of this. समझ रहे हैं आपको? So can I say these two waveform are the inverted version of each other because I have minus here, and what is the phase difference? What is the angle difference? So angle difference is 180 degree. What is 180 degree, sir? Pi. What is pi? So pi is 3.1428. क्या बात है, मजा आ गया. आइए 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 आइए, ये देखिए 3 के ऊपर क्या है? What is after 3? 3.1428. Can you answer me why I'm getting such kind of waveform? Because when it is Vati, I have to invert. Correct? When it is topi, I have to make it as it is, 0 degree phase shift. जब टोपी मिलेगा तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट रखना है, जब वाटी आएगा वो टाइम पे उल्टा करना है. उल्टा मतलब क्या करना है? 3.1428 रेडियन का फेज शिफ्ट लगाना है, ताकि मुझे वेवफॉर्म कैसे मिले? ऐसे मिले. समझा? कहां से आया ये? सी या मैटलैब में आप करोगे तो आपको ये आंसर आने वाला है. दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच वाज गिवन बाय मैटलैब. ये मैटलैब वाला डॉक्यूमेंट है. अगर इसको मैं कंप्यूट करता हूं तो आपको यही वेवफॉर्म देखने को मिलने वाला है. Do you want me to execute for you? Okay, sir, I will execute for you. EX thesis students, don't worry. Sukanya ma'am will teach you this experiment. All these working codes are available in that lab manual. ये lab manual में आपको पूरा देखने को मिलेगा. Experiment number 3C की बात हो रही है. ये देखिए, बराबर यही आया. सही है? प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं मैं. This is the waveform I am going to get when I solve that experiment. ये वाला एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूं अगर नहीं समझा है तो. ये मेरा लैब मैन्युअल है. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 3C. यस, 3C. ये देखिए, to plot amplitude and phase spectra of a given function using Fourier transform. Fine. तो ये वो था, ये एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा है. फिर इसका हम लोगों ने एब्सोल्यूट वाला निकाला, तो ये जो जो वाटी था वो टोपी बनना शुरू हो गया. तो मुझे ऐसा वेवफॉर्म आया, और जो वाटी का टोपी बना है वहां पे ही मुझे कितने का फेज शिफ्ट लगाना पड़ेगा? 3.14. ये देखिए, ये वाटी बना, वाटी का टोपी बना 3.14. ये टोपी पहले से ही था तो कितना फेज शिफ्ट आया? 0 आया. ये वाटी का टोपी बना, देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म कैसे? ऐसे वेवफॉर्म है. इट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड. नेगेटिव पीक है यहाँ पे. ये नेगेटिव पीक आइए 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 आइए, ये देखिए पॉजिटिव बन गया. बन गया पॉजिटिव. कितना लगाया? +180. आई एम नॉट चेंजिंग द माउस का पोजीशन. माउस का पोजीशन मैंने वैसे रखा, सिर्फ खाली मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं आपको मैं. अब ये वाला एग्जांपल देखिए आप, कितना दिख रहा है आपको? +180. व्हाई इट इज +180? बिकॉज यू हैव योर टोपी. एक्चुअल में ओरिजिनली वो क्या था? देखो देखो देखो, वाटी था वो. समझा आपको? चलो लास्ट केस. ये क्या था? ये वाटी था. देखिए यहाँ पे कैसे टोपी बनने वाला. ये देखिए टोपी बन गया. टोपी बना करके यहाँ पे कितने का लगा है फेज शिफ्ट? 3.14. 180 डिग्री फेज शिफ्ट. क्या बात है. समझा सबको क्या चल रहा है? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी नाइस. सर एक बार कैन यू एक्सप्लेन द फेज शिफ्ट वाला पार्ट अगेन? ओके. ये देखो, मैंने बनाया साइन एक्स का वेवफॉर्म, तो ये मुझे वेवफॉर्म मिला. ठीक है. अब मैं पूछता हूं, कैन यू प्लॉट साइन ऑफ एक्स प्लस 180 डिग्री?
और साइन ऑफ x माइनस 180 डिग्री। प्लस का मतलब होता है एडवांस, माइनस का मतलब होता है डिले। प्लस बोले तो एडवांस, एडवांस मतलब आपका सिग्नल लेफ्ट की तरफ जाएगा, माइनस मतलब आपका सिग्नल जो है वो राइट की तरफ जाएगा। Who has asked this question? He is from EXTC or electronics? Sir, EXTC. अच्छा, ओके। I'll give an example to you, जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को दिया था। मजा आने वाला, ध्यान से सुनिए, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे आप। 12 PM मतलब कभी दोपहर का टाइम। Here I do my lunch every day. फाइन, एग्जाम्पल 12 बजे मैं लंच करने वाला हूं। नाउ एक दिन क्या हो गया, मुझे शार्प 11:59 को मुझे मैसेज आया। व्हाट मैसेज? आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम होम, मैसेज फ्रॉम एचओडी और मैसेज फ्रॉम डीन और फ्रॉम प्रिंसिपल दैट वी आर हैविंग एन अर्जेंट मीटिंग एट 12 PM। फाइन, अब मुझे बता, व्हाट शुड आई डू? शुड आई स्किप माय लंच व्हिच आई एम सपोज्ड टू डू एट 12 और शुड आई रश फॉर द मीटिंग? तो ऑब्वियसली एज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आई नीड टू रश विद द मीटिंग। तो ऑब्वियसली मेरा जो लंच है वो फिर मुझे करना पड़ेगा 2:30 PM। क्या यार, मेरा खाना हम लोग ने हराम कर दिया, मुझे खाना खाना था, मतलब आई गिव सम कर्स, बट डेफिनेटली एज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मन के नीचे मन के ऊपर आप बोलते हो, मुझे यहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। फाइन, ये केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 1 को हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने 10 बजे के लेक्चर के जगह पे 10:20 को ज्वाइन किया। हमने क्या कहा बच्चों को? अरे क्या नेगेटिव बच्चा है, कितना लेट ज्वाइन करते हैं, बेकार बच्चे, दे आर ज्वाइनिंग वेरी लेट। फाइन, सो डोंट यू थिंक व्हेन द थिंग्स गेट्स डिलेड इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट? बिकॉज टाइम एक्सिस में अगर ये 0 है, फॉर एग्जांपल दिस इज 0, so if I start moving towards right, so don't you think things are going to delay? So that is the reason delay मतलब things will move towards right. Fine. अगर मैं खाना 12 बजे करता हूं, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और मुझे मेरी वाइफ बोलती है कि since today is Sunday, let's go for a date, let's go outside, let's go for a movie. तो जो 12 बजे खाना खाने वाले हो, why don't you have it early morning, like 11 AM? So here I am advancing my work. I am doing my work in advance. I am doing the work early. By how much unit? By 1 hour. So here when I talk about advance, at that time things start moving towards left. Fine? That was the meaning of that. So here if I take the example, जैसे यहाँ पे आपने कहा, fine? So here when you talk about plus, this means it is left and it is advance, and when it is minus, at that time it is delay or it is moving towards right. So here this was the waveform. When I talk about plus का मतलब होता है कि it is advance, it will move towards left. तो ये पूरा जो आपने जो झगड़ा जो ड्रॉ करके दिखा है यहाँ पे जिस ब्लू कलर का वेवफॉर्म, ये पूरा हिलकर लेफ्ट में आने वाला है। तो कहां से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम -180 डिग्री। करेक्ट ना? अगर ये 0 था सर, ये अगर 0 है तो दिस इज -180, दिस इज +180, ये +180 है, ये 0 है, ये -180 है, तो आपका -180 से आपका वेवफॉर्म स्टार्ट होगा। सो डोंट यू थिंक इट इज स्टार्टिंग 180 डिग्री यूनिट्स प्रायर? जैसे यहाँ पे मैं 1 घंटा पहले काम कर रहा हूं, उसी प्रकार से ये एक 180 डिग्री पहले काम करेगा। तो पूरा के पूरा जो टोपी है वो ओरिजिन तक खत्म हो जाएगा और वाटी शुरू होगा। ये किसका केस था? +180 का केस था। लेकिन अगर मैं माइनस वाले की बात करूं तो माइनस में आपको आपके वेवफॉर्म को राइट में लेके जाना है। जैसे मेरा लंच 12 बजे के जगह पे मैं कभी करने वाला हूं, मैं 2:30 बजे लंच कर रहा हूं मैं। सो आई एम डिलेइंग द थिंग्स बाय 2.5 यूनिट्स। So here I need to delay by how much unit? By 180 degree units. So now it will start from here. So when my waveform is starting from here, so now I'll be getting continuous waveform from this point onwards. मतलब यहां से आप क्या कहोगे? क्या ये सिंपल तो है सर, कितना क्या सोच रहे हो कि ये पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे, this is your point of invoking and then this will be a waveform. Yes, I know this is not a problem. But इसके पहले क्या? What before this? What prior to this? So you say since this is continuous waveform, so let us assume कि इसके पहले वाट ही आना चाहिए, because आपको यहाँ से आपको waveform, your waveform is starting from here. You don't have data available over here, but you're assuming, you're estimating, you're interpolating, you're approximating that your waveform over here will be negative in portion.
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लस भी लेते हो माइनस भी लेते हो तो पहले आपको वाटी मिलता है, बाद में आपको टोपी मिलता है। लेकिन अगर आपका फेज शिफ्ट 0 डिग्री है तो पहले आपको ये टोपी मिलेगा, बाद में आपको ये वाटे मिलने वाला है। तो पहला टोपी बाद में वाटी। मतलब क्या है कि साइन एक्स अगर है तो साइन 90 आपको 1 देगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन 90 विल गिव यू व्हाट, माइनस ऑफ 1। So don't you think this both the waveform are inverted, inversion of each other? मतलब जब आपको 90 मिला तो ये आपको माइनस 90 दे रहा है, जब आपको माइनस 90 मिला ओरिजिनल में तो आपको ये प्लस 90, तो ये आपको ये प्लस 1 दे रहा है। मतलब यहाँ पे when you have plus 1 you have here minus 1 at the same point instant, and when you have minus 1 here you are getting here what, plus 1. So don't you say these are the inverted version of each other? ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपका फेज शिफ्ट 180 डिग्री का था, भले फिर वो पॉजिटिव फेज शिफ्ट हो या फिर नेगेटिव फेज शिफ्ट हो। सर आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पॉइंट। एंड व्हाट इज 180? 3.1428 एज पर द रेडियंस। Yes, sir. ये एग्जांपल सबको और क्लैरिटी मिला रहेगा। लाइक यू नो दिस एग्जांपल वेरी वेल। लाइक मुझे क्या करना है, व्हेन यू आर डूइंग लंच, अगर डिले होता है तो राइट की तरफ जाएगा, अगर कोई चीज मैं एडवांस में करता हूं तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एडवांस था, वेवफॉर्म शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड व्हेन माइनस मतलब डिले, इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स राइट। एंड व्हेन यू मेक द थिंग मूव टुवर्ड्स राइट, you have to face, you have to suffer with the loss of data because you don't know what is going to happen here, because ये डेटा के पास में है ही नहीं कि आपने क्या कहा कि सर मेरा वेवफॉर्म is starting from 0, so what is here after, you are assuming, you need to interpolate in that case. Anyways, fine, so this what we have seen in this case. ये वेवफॉर्म अगर आप देखते हो मैटलैब के ऊपर, आपको मैं करके भी दिखाया मैंने प्रैक्टिकली, बिकॉज मेरा सिखाने का तरीका वही है, बिकॉज आई टीच फर्स्ट थ्योरी एंड देन आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल। फाइन, so this what the waveform we have seen in this case. अरे यार, this student is joining right now, खुशी क्या समझेगा 10 मिनट पहले आप ज्वाइन करते हो। Anyway, so you have understood with this point. अभी आता है, हाँ एक सेकंड ना जेनिल, एक सेकंड। अभी आता है सिग्निफिकेंस। अरे यार क्यों पढ़ रहे हो यार, ये क्या कशाला होगा डोकाला ताप? सर कुछ तो रीजन होगा ना पढ़ने का, फुकट क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा? सुनिए क्यों दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखते हो, इधर देखिए, 0 एट 0 व्हाट यू हैव, अ वेरी हाई पॉजिटिव पीक। मतलब यहाँ पे एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सुनिए ध्यान से वर्डिंग्स, at fundamental frequency you have a dominant part available. As you start traversing from this point to here, tick 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 tick, आप यहाँ आना शुरू हो रहे हो, and when you start moving towards negative part, again the sine wave or the cosine wave or the sinusoidal waveform, sir, उसका effect is going to decrease. ये समझ गया मुझे? सही है गलत सर? जब डोमिनेंट की बात होती है, जब 0 की बात होती है, वहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। At 0 the amplitude is very high, fine, and as I start moving from fundamental, that is from 0 till where, towards plus infinity, towards minus infinity, the effect is going to decrease. क्या मैं ये कहूं कि should I ignore the higher orders? No, not at all sir, इग्नोर नहीं करना है, भले उसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन राय की चीज के बराबर भी उसका वैल्यू होता है। हम लोगों को इंग्लिश में लेसन हुआ करता था 11th में, a pinch of salt, like if you add a pinch of salt more to it, the entire thing becomes salty and it will increase and you may suffer a problem of blood pressure. तो ब्लड प्रेशर वाले को सॉल्ट नहीं दिया जाता है सर, एक पिंच ऑफ, वो उसका कहने का मतलब था कि पिंच ऑफ सॉल्ट कैन मेक योर पेशेंट गो इनटू गेट इनटू बीपी काइंड ऑफ थिंग, ब्लड प्रेशर का उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि एज यू आर इन द फंडामेंटल, the effect is very dominant in nature, and as you start moving towards the plus infinity or minus infinity, at that time the effect goes on decreasing. Means there is a harmonic available even at plus infinity. Yes or no? Yes, there is a harmonic available even at plus or minus infinity, even though the effect is 0. मतलब एम्पलीट्यूड तो बहुत कम होगा, 0.000001,
लेकिन वो वैल्यू को भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यू कम ओवर हियर। अब सीरियसली मजा आने वाला है। अच्छा लगता है बच्चा, आप जब ये क्वेश्चन पूछते हो। अब देखिए मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। आइए नीचे की तरफ। ये ना हैंडसम फेलो, बिल्कुल मेरी तरह है, वेरी हैंडसम फेलो। ओके, दिस इज अ स्क्वायर वेव फॉर्म, राइट? ये स्क्वायर वेव फॉर्म है। ये स्क्वायर वेव फॉर्म को देखिए क्या हुआ यहां पर। फाइन, इन दिस स्क्वायर वेव फॉर्म इफ यू सी, sine wave is there, fundamental, high amplitude. As frequency goes on increasing, amplitude goes on decreasing, amplitude goes on decreasing. And when I try to combine them, it gives me a resemblance of a square wave. This gives me a resemblance of square wave. As I move forward, ये हम लोगों ने एक वीडियो देखा था बीच में हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर, as I start adding infinite number of sine wave, what is वही था वहां पे, if I add infinite number of sine wave in this fashion, I'll be left with a pure square wave. मतलब कहने का ये है बच्चा कि ये जो आपने बनाया इधर, ये क्या था? This was basically what you have drawn here. This was again a square waveform, and when you draw a spectrum, तो स्पेक्ट्रम आपको ये बोलता है कि दिस वेव फॉर्म इज मेड अप ऑफ sinusoids. It could be sine, it could be cos, and they are ranging from -infinity to +infinity. अभी आपको अगर ये पता चल गया है तो क्या मुझे बता सकते हो बैंडविड्थ क्या होगा? आपने पढ़ा है सर बैंडविड्थ इज गिवन बाय हायर फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। कब पढ़ा है मालूम है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब एम्पलीफायर आपने ड्रॉ किया था, कुछ आपने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था, एक पहाड़ बनाया था आपने, अगर आपको याद होगा तो, एंड फिर आप नीचे आ गए 3 dB डाउन, फिर आपने बोला दिस इज FH, दिस इज FL, फिर आपने कहा ए बैंडविड्थ इज गिवन बाय हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द हायर फ्रीक्वेंसी इन दिस केस? +infinity. द हायर फ्रीक्वेंसी इज +infinity. What is the lower frequency, sir? Lower frequency is what, sir? 0. Lower frequency is 0. So I can say bandwidth is what? Infinity minus 0 infinity. मतलब यहाँ पे अगर मुझे कोई स्क्वायर वेव फॉर्म को ड्रॉ करना है, so I require a sine wave of infinite bandwidth. What is the meaning of bandwidth, sir? फिजिकली टेक्निकली बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? वो ये होता है, अगर आप बांद्रा वर्ली सी लिंक पे जाते हो, इफ यू गो वेयर बांद्रा वर्ली सी लिंक, हाउ मेनी लेन्स आर देयर? 1 2 3 4, करेक्ट? मतलब आपका गाड़ी यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि हियर अगर मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया 1 2 3 4 वाला, so now you will be having Maruti Wagon-R here, Ertiga उसके बाजू में, Hyundai Creta उसके बाजू में, Mercedes उसके बाजू में, मतलब 4 गाड़ी एक साथ ऐसा जा सकता है। दिस इज द बैंडविड्थ। मतलब वो उसका विड्थ है कि वो विड्थ से कितना गाड़ी एक साथ ट्रैवल कर सकता है, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी डिवाइस ड्रॉ करता हूं, डिवाइस मतलब कोई भी गैजेट, वो गैजेट का जो आउटपुट होगा, तो वहां से जो सिग्नल बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्या ड्यूरेशन का रहेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं सर, कि ये सपोज दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन सी दिस इज ह्यूमन, आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, ये आदमी है और ये आदमी का कान है, दिस इज ईयर ऑफ अ पर्सन। तो ईयर का बैंडविड्थ कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर इट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। अंडरस्टूड सर? 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो क्या मैं ये आदमी के कान से 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल पास कर सकता हूं? बोले सर रहम करो सर, जल के खून निकलेगा उसके कान में से। व्हाई? बिकॉज वो आदमी के ईयर का उतना बैंडविड्थ नहीं है। एग्जाम्पल, अगर समझो मेरे पास में छोटी सी गली है, वो गली से क्या मैं मारुति एर्टिगा पास कर सकता हूं? नहीं पास कर सकता। आप बोलोगे सर छोटी सी गली, रहम करो सर, आपका गाड़ी ब्लॉक हो जाएगा सर, अब गाड़ी निकलेगा ही नहीं आपका। व्हाई? बिकॉज उसका बैंडविड्थ छोटा है। यहाँ पे आपका बैंडविड्थ बहुत बड़ा है,
4 गाड़ी एक साथ निकल सकता है, यहाँ पे आपका गाड़ी जाएगा ही नहीं। सिमिलरली दिस इज टॉक अबाउट बैंडविड्थ। सो हियर वो क्या बोलता है कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक अ रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म टू पास थ्रू अ डिवाइस, I require that device should have infinite number of bandwidth। मतलब उसका कान इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर मैं वहां से 10 मेगाहर्ट्ज का भी साइन वेव अगर मैं ट्रैवल करवाता हूं तो भी सफर करना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या ऐसा डिवाइस, क्या ऐसा गैजेट पॉसिबल है जिसका बैंडविड्थ इतना ज्यादा हो? Obviously no sir, you cannot have a device which can have and allow infinite hertz का waveform to pass through it। फिर सवाल ये उठता है कि सर अगर कोई डिवाइस है जिसका इनफाइनाइट हर्ट्ज का बैंडविड्थ नहीं हो सकता है तो आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि फिर आपको वहां पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर मतलब ये कि दिस इज द डिवाइस विच कैन अलाउ टू पास ओनली अप टू 10 मेगाहर्ट्ज। फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू यू। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैंने रन किया, क्या रन किया मैंने? स्पीड टेस्ट। आई एम रनिंग अ स्पीड टेस्ट ओवर हियर। क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पे बेटा? इट इज शोइंग मी व्हाट सर? 48 मेगाबिट पर सेकंड। मतलब वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि मेरा जो इंटरनेट का स्पीड है वो है 48 मेगाबिट पर सेकंड। ठीक है, इसके लिए हाउ मच आई एम पेइंग? आई एम पेइंग 700 पर मंथ। For 700 per month, I am getting 50 megabit per second। बीच में मुझे कीड़ा काटा। कीड़ा मतलब मस्ती आ गई। मस्ती ये आ गई कि काम करते हैं, मैंने उसका प्लान चेकआउट किया। अब प्लान देखने का मुझे पता चला कि अगर मैं 800 रुपया भरता हूं, मतलब 100 रुपया ऊपर और, तो मुझे जो है वो 100 MBPS का स्पीड मिलेगा। क्या कहा मैंने? जब मैं 700 भरता हूं तो मुझे कितना स्पीड दे रहा है? मुझे वो मेरा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे वो 50 MBPS का प्लान दे रहा है। मुझे कीड़ा ये काटा, मुझे खुजली शुरू हुई मुझे कि अगर मैं 800 रुपया अगर भरता हूं, मतलब 100 रुपया और, तो मुझे 100 MBPS का मुझे नेट मिलेगा। अगर मैं 900 भरता हूं तो मुझे 150 MBPS का स्पीड मिलेगा। एक काम करते मैं 150 रुपया और भरता हूं, मतलब मैं 950 भरता हूं, तो 950 भरने पर मुझे कितना स्पीड मिलने वाला है? 150 MBPS। अभी आप मुझे ये बताइए, अगर मैं मेरा ये इसको चेक करता हूं, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इथरनेट केबल। इथरनेट केबल का स्पीड कितना होता है लैन का? व्हाट इज द लैन का स्पीड? आपने सुना होगा व्हाट इज लैन स्पीड? लैन स्पीड इज हाउ मच? इट इज जस्ट 100 MBPS। करेक्ट ना? देखो यहाँ पे देख सकते हो, फास्ट इथरनेट इज अप टू 100 MBPS। क्या मुझे 150 MBPS का नेट लेके मतलब है? नहीं मतलब है सर। अगर मुझे 150 MBPS का अगर मुझे नेट लेना है तो मुझे गीगाबिट इथरनेट वाला नेट का लाइन डालना पड़ेगा। अगर मुझे 10 Gbps अगर मुझे चाहिए तो मुझे 10 गीगाबिट इथरनेट वाला मुझे लाइन केबल डालना पड़ेगा। आई वोंट बी एबल टू हैव 150 MBPS का नेट कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग लाइन विच आई हैव राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। नॉट पॉसिबल सर। क्यों? बिकॉज बैंडविड्थ सपोर्ट नहीं करता है। मुझे मेरे राउटर को चेंज करना पड़ेगा, मुझे मेरे इथरनेट केबल को चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड सर? कहने का मतलब ये है कि ये होता है बैंडविड्थ का सिग्निफिकेंस। जैसे यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया, ह्यूमन ईयर 20 से 20,000 हर्ट्ज, वो 20,000 हर्ट्ज के कान से आप 2 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल नहीं पास कर सकते हो। नॉट पॉसिबल। Whatever I'm speaking with you right now, the audio frequency is only from 20 to 20,000 hertz. I cannot make a sine wave through my vocal cords of frequency 2 megahertz. Not possible, because एक limitation डाल दिया है जो आपको सुकन्या मैडम will teach you in filters, bandwidth, band pass filter, band reject filter, low pass filter, high pass filter, वहां पे आपको और clarity मिलेगा आपको। Is it clear to you sir? समझा के सर के ऊपर से गया? यस सर, समझा। Okay, okay. Good. I think it's already 11. We will stop with the class. I think you might have appreciated कि like I have given you full idea। like आपको theoretically भी समझा, practically भी आपको मैंने बताया, और significantly भी आपने देखा। like physical, ईशान का जो question था कि sir what is the physical significance, like why you study all this, what is the motive behind that? तो ये वही रीजन है कि आपके why you should know, like you should know। आप टेक्निकली फिजिकली चीजों को समझिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या इसका रीजन है। हर चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है जो आपको समझना जरूरी है। बैंडविड्थ, आई होप विद दिस एग्जांपल, जब हमने एग्जांपल दिया बैंड्रा वर्ली सीलिंग का, अभी नाउ वीकेंड इज अप्रोचिंग,
फाइन, तो वीकेंड में यू गो टू बांद्रा वर्ली सील, यू सी के सच कितना बड़ा उन लोगों ने बनाया कि आराम से चार गाड़ी तो एक साथ आराम से जा सकता है। बट वही अगर छोटा सा गली है तो क्या वो गली में आपका मारुति एर्टिगा या हुंडई क्रेटा या इनोवा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। आप बोलोगे यार काश मेरे पास में एक्टिवा होता या मेरे पास में स्कूटी पेप होता तो ये आराम से निकल पाता मैं। बट नो, यू वॉन्ट बी एबल टू गो एंड ट्रैवल एंड गो विथ एर्टिगा थोड़ा छोटू सा गली, नॉट पॉसिबल, बिकॉज बैंडविड्थ उसका उतना नहीं है। Understood, sir? Anyway, so this completes with the today's session. और भी एग्जाम्पल्स नीचे वो भी थोड़ा ट्राई करके देखिए। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इवेल्युएशन किया है, लाइक गेटिंग द फॉर्मूला हाउ व्हाट इज सी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे उसने न्यूमेरिकल को यूज किया, न्यूमेरिकल के थ्रू हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे उसने पूरा टेकन द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। तो आप थोड़ा गो थ्रू करिए इफ पॉसिबल, विल डिस्कस एवरीथिंग एज वेल। Anyways, we'll stop with the class. Those who have doubt, they can stay back. The others can exit. जेनिल कुछ तो पूछ रहा था शायद। Thank you, sir. Yes, sir. Yes, yes. Others can exit, please. Those who have doubt, they can stay back. Others can exit. Yes, sir. I wanted to ask, ये जो Yes, yes. हमारा फेस स्पेक्ट्रम है, बोलिए that बेटा। is